Greetings of the day, student. So we are moving ahead with our study part, and I have uploaded two more videos with this thing. One is for moving to code blocks, and other one is for general instructions that we are talking about in class. In general instruction video, I have also talked about an assignment, so don't skip that video. Okay, watch it very carefully. You have to do that assignment, right? And as I had discussed in last lecture, I'm skipping two short chapters called operators and expressions, and another one is input output. These two chapters are very short, and I think they should be learned after the chapter we are discussing right now, which is decision making and looping in C. Okay, so this is very important chapter in any language, in any programming language. When you are learning, you should be knowing how to loop through the things and how to use if else and other decision making statements, that's a switch and other things. Everything we'll see in this chapter, so I'll suggest that you learn this chapter very nicely and very carefully, because there are some core aspects of programming languages, every programming languages. So decision making and looping are very core parts of those programming languages. If you know very well, if you practice this very well, you will have so much confidence. So if you need to gain confidence that you know C or any other programming languages, learn their looping structure and decision making. So this is one of the core parts of a C programming language. Okay, it's very easy, it's very understandable, just requires your attention and practice. फाइन, आपको सिर्फ अटेंशन देना है, आपका टाइम देना है और प्रैक्टिस करनी है, बहुत ईजी है. फाइन, एक सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है. सो आई सजेस्ट यू लर्न इट वेरी केयरफुली. मूविंग फॉरवर्ड, सो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं. ओके, दे आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, राइट? सो व्हेनेवर यू वांट टू मेक एनी डिसीजन, they are used in decision making. So whenever you want to make any decision in programming language and change the control structure of the program, you use control structures. And mainly three control structures are there in C. First is sequence changing, then we have decision making, and then we have looping. Okay, so we'll be learning this in quite a bit of detail in upcoming slides. Okay, so let's move forward. Decision making in C. So decision making यानी प्रोग्राम हर बार सिंपल नहीं होता. लेट्स से मुझे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आई हैव फार्मूला पाई आर स्क्वायर, यूजर आर की वैल्यू डालेगा एंड सर्कल का वैल्यू कैलकुलेट हो गया. पर जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार सर्कल का वैल्यू कैलकुलेट करना है. लेट्स से आई हैव अ प्रॉब्लम. अगर यूजर आर की वैल्यू एंटर करता है, हम यूजर से स्टार्टिंग में पूछेंगे इफ यू एंटर द वैल्यू ऑफ आर, तो मुझे सर्कल का एरिया देगा. इफ यू एंटर द वैल्यू ऑफ एल एंड बी, तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया देगा. ओके, तो यूजर विल हैव टू सिलेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. फाइन, हर बार प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नहीं होता कि उसको हम सीक्वेंस में परफॉर्म कर सकते हैं. कई बार हमें प्रोग्राम में डिसीजंस लेने पड़ते हैं. वी हैव टू पार्ट द वेज. सो उसके लिए क्या क्या यूज होता है? एक तो इफ एल्स यूज होता है, राइट? मल्टीपल इफ एल्स यूज होता है, जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस देने पड़ते हैं एमसीक्यू के जैसे. यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. देन वी हैव स्विच. ओके, हमें हर एक ऑप्शन को चेक नहीं करना. ये सब क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे. आई एम जस्ट क्विकली मेंशनिंग. यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. ओके, यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट फर्क क्या है कि हम हर एक ऑप्शन को चेक नहीं करते हैं. वी ओनली चेक वन ऑप्शन फॉर दैट फ्रॉम दैट मल्टीपल ऑप्शंस. यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं. एंड देन वी हैव गो टू स्टेटमेंट. हमारे प्रोग्राम में हमें कहीं से भी कहीं पे जंप करना है, तो उस जंप के लिए किसका यूज होता है? गो टू स्टेटमेंट का. ओके, सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए. इन चीजों से हम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप करेंगे, राइट? सो स्टार्टिंग विथ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वैसा ही इफ स्टेटमेंट है, बस हमें याद क्या रखना है? उसकी सिंटैक्स याद रखनी है. सो हम रियल लाइफ में कैसे इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं? जैसे कि इफ इट विल रेन आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला. अगर बारिश होगी तो मैं अपना छाता साथ लेके जाऊंगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एन इफ स्टेटमेंट. नहीं होगी तो क्या करना है वो हम नहीं बता रहे हैं. अगर होगा तो हम ये करेंगे, नहीं होगा तो आई विल कंटिन्यू विथ माई नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर क्या है वो डिफाइंड नहीं है. सी, ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है इफ स्टेटमेंट का. ऊपर सेट ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम चलता आ रहा है. कोई एक जगह पे प्रोग्राम में हमें कंडीशन है, वहां पे हमें डिसीजन लेना है कि लेट्स से इफ इट इज रेनिंग, तो हम क्या करेंगे? कुछ चीजें परफॉर्म करेंगे. इफ इट इज रेनिंग तो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, आई विल टेक केयर ऑफ सम थिंग्स, आई विल
पुट एवरी फाइल्स एंड एवरी पेपर्स अंडर कवर, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर लेंगे। इफ इट इज नॉट रेनिंग तो हम दूसरा बात लेंगे और हम डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगे, प्रोग्राम के फ्लो में आ जाएंगे। दोनों चीजें यहाँ पे मिल रही है, एज यू कैन सी प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो अगर कंडीशन सही है तो हमें कुछ चीजें परफॉर्म करनी ही है, और नहीं सही है तो भी हमें कुछ भी चीजें परफॉर्म किए बिना यहीं पे मिलना है, जंक्शन पे, ओके, एट दिस जंक्शन। सो बाद में हम अगेन प्रोग्राम का फ्लो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। नीचे दूसरा प्रोग्राम हो सकता है, ऐसा ही से इफ के पहले भी कुछ प्रोग्राम हो सकता है, इफ के बाद में भी जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू ही करना है। पर एट पॉइंट ऑफ अ टाइम हमें प्रोग्राम में कहीं डिसीजन लेना है, तो हम कुछ डिसीजन लेके उसके अकॉर्डिंग चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड जनरल इफ स्टेटमेंट, राइट। सो इफ सिंटैक्स क्या है, पहले इफ लिखेंगे, उसकी कंडीशन चेक करेंगे, ओके, और फिर हम क्या लिखेंगे, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, फाइन, एंड देन वी आर गुड टू गो। Okay, so we'll see the example of this if statement. I'll just switch to code blocks. Okay, हम already code blocks में switch हो चुके हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, first see that video and then come back here. Okay, create a new project. क्या select करते हैं हम, console application, go. Okay, and then we are programming in C language, so I'll select C. Project title में दे रहा हूँ if else one. Okay, if else का मेरा पहला project है, so if else one. Next, GNU GCC compiler है, finish. Fine. After some processing, you will see your project listed here. After that, open main.c file. Already आपको कुछ listed मिल रहा है, उसमें से मुझे stdlib नहीं चाहिए, so I'll remove stdlib thing. Then I have my program ready. I'll just quickly zoom it in so you can see. हमारा काम है यहाँ पे if statement apply करना, okay? हम ऑलरेडी इंटीजर सीख चुके हैं, सो मैं इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर एज इज इक्वल्स टू लेट्स से 18। मैं यूजर से नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं खुद से ही एज 18 एंटर कर दे रहा हूँ, राइट। सो इंटीजर एज इज इक्वल्स टू 18। इफ स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 विल प्रिंट सम मैसेज, लेट्स से printf okay you are eligible for driving or you are eligible for voting, okay, and else हम नहीं लिखेंगे, ओके। सो अगर आप 18 से ज़्यादा एज के हैं, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके, और नहीं है तो आप एलिजिबल फॉर वोटिंग नहीं है, वो हम बाद में प्रिंट करेंगे। उससे पहले कुछ प्रोग्राम का फ्लो है, जैसे कि प्रिंट एफ, ओके, दिस इज स्टेटमेंट 1, ओके, ये स्टेटमेंट 1 है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग, पेस्ट इट हियर, दिस इज स्टेटमेंट 2, ओके। एक स्टेटमेंट 3 मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, ओके, उसको मैं डिनोट करता हूँ एज अ स्टेटमेंट 3। देन आई एम कमिंग बैक फ्रॉम हियर, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5, इन दोनों के नंबर्स चेंज कर देता हूँ, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5, ओके। ये प्रोग्राम का फ्लो देखने के लिए है। इफ आई जस्ट क्विकली रन दिस प्रोग्राम, एज 18 है, तो 18 है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, सो इसके अंदर जाएगा। अगर हमारी कंडीशन सही है, ये हमारी कंडीशन चेकिंग है कि एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो इट शुड गो इनसाइड दिस एरिया। ये जो इफ का ब्लॉक एरिया है, इफ है वो हेडिंग है अगेन, ठीक है। इंटीजर मेन है हमारे प्रोग्राम का हेडिंग है, ये मैं लैब सेशंस में बता चुका हूँ। उसके पीछे हम सेमीकोलन नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए इफ है वो हमारा हेडिंग है, उसके पीछे भी हम सेमीकोलन नहीं करते हैं। उसके आगे के कुछ स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम के, उसके पीछे के भी प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट है। लेट मी पुट स्पेस बिटवीन दोज थिंग्स, फाइन। सो इफ है वो हमारे कोई ब्लॉक का हेडर है, उसके पीछे हम सेमीकोलन नहीं करते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन करना इज वेरी रॉन्ग थिंग, आई एम रिमूविंग इट, ठीक है। और ये इफ का ब्लॉक है, ये उसका स्टार्टिंग ब्रैकेट है, उसका एंडिंग ब्रैकेट है, ओके, विल कीप ट्रैक ऑफ दैट। और उसके अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, ये डिसीजन मेकिंग है, ये तभी ही एग्जीक्यूट होंगे अगर ये कंडीशन सही है,
ओके अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। सो बाकी का प्रोग्राम का फ्लो पहले का और बाद का वैसे ही चलेगा, उसका इफ से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना सिर्फ ये कंडीशन के है और इफ के अंदर के स्टेटमेंट से है, फाइन। आई एम क्विकली रनिंग दिस प्रोग्राम, ओके just a minute, we'll go compile and run. I think we have our output. Okay, yes, हमारा output आ गया. This is statement 1, this is statement 2, this is statement 3, which is inside the if thing. And if you are eligible for voting because it is greater than 18. This is statement 4 and this is statement 5. इसमें हमें new line नहीं देखने मिल रही है, so I'll quickly put new line there. Okay. /n and /n. Okay, I'm running it again. Let's say build and run. Okay, then we have our output. This is statement 1, this is statement 2. Okay, statement 3 भी है, eligible for voting वाला statement है, 4 है और 5 है, because we are printing every statement because our age is 18. Let's say मैं age 18 से छोटी रख देता हूँ, 2 years है age. So I'll run it again. अगर मैं प्रोग्राम वापस से रन करता हूँ build and run से, so we'll see there are only 4 statement, 1, 2, 4 and 5. if के अंदर वाले दो statement है वो print नहीं हुए, as you can see. if के अंदर वाले दोनों स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं हुआ है, क्यों प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि कंडीशन गलत है, हमारी जो एज वैल्यू है वो 2 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. दैट इज व्हाई these two statement 3 and you are eligible for voting are not printed. why? क्योंकि वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, बाकी पहले का प्रोग्राम का फ्लो और बाद का प्रोग्राम का फ्लो वैसे ही रहता है एज वी डिस्कस्ड. ओके, सिमिलर एक चीज है, दैट इज if and else. we'll quickly see it. ओके, जैसे कि सिर्फ इफ था वैसे इफ एंड एल्स है, नहीं. इफ एंड एल्स क्या कहता है, अगर कंडीशन सही है तो आप ये चीजें कीजिए, अगर कंडीशन गलत है फिर आपको कुछ परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी आप अलग ब्लॉक बना सकते हैं. ओके, यहाँ पे ये ब्लॉक 1 है जो इफ का रिलेटेड है, इफ के रिलेटेड स्टेटमेंट्स इसमें हो सकते हैं. ये ब्लॉक 2 है. ओके, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं किया, आप देख सकते हैं क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, पूरा ब्लॉक है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है. उसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर सही है तो इस रास्ते जाएगा और कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, गलत है तो उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स भी हैं जो वो एग्जीक्यूट करेगा और बाद में जंक्शन पे आके यहीं पे मिलेंगे दोनों. ओके, दे विल मीट हियर एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव सम स्टेटमेंट बिलो और फ्लो ऑफ द प्रोग्राम यू कैन एग्जीक्यूट इट. ओके, सो एक और चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, राइट. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू इन आवर कोड ब्लॉक्स एल्स कैसे लिखे जाते हैं. मैं यहाँ पे दूसरा ब्लॉक बनाऊंगा एल्स नाम का. अगर कंडीशन गलत है तो अभी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अगर कंडीशन गलत है और हमें एग्जीक्यूट करना है तो एक प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए. सो आई जस्ट क्विकली कॉपी इट एंड पेस्ट इट दैट यू आर not eligible for voting, and this is what statement number, I guess 6. राइट, इसको 6 दे देंगे और मैं इसको रन करने की ट्राई करूँगा. लेट फर्स्ट अबाउट द ongoing thing. Fine, and build and run is not coming, just a sec. Okay, so we're back with if and else. अगर if की कंडीशन सही नहीं है तो else वाला पार्ट पे एग्जीक्यूट होगा. I'll just quickly check it. अगर मैं build and run पे क्लिक करता हूँ so we'll see an output. कौन सा आउटपुट है, स्टेटमेंट 1 2 एग्जीक्यूट हो गए हैं, फिर एज यू कैन सी स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग एग्जीक्यूटेड एंड 4 5 एग्जीक्यूटेड. ओके, सो इफ एंड इफ एल्स आर सेम. अगर आपको कंडीशन सही नहीं है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं तो यू कैन यूज एल्स. ओके, होप यू प्रैक्टिस दिस एट होम. इफ एंड एल्स सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं. फाइन. If you have doubt, you can comment it in classroom or reach out to me. Okay, thank you.
Greetings of the day, student. So we were just discussing about if else statement, right? First we discussed only if statement. Let's say if you have, if you just want to do some conditional thing, just a second, I'll choose highlighter. Yes, if you just want to do a conditional thing, then you will choose only if statement. There is nothing in else part. वो कंडीशन गलत है तो कुछ नहीं करेगा, अगर कंडीशन सही है तो कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, और अगर कंडीशन गलत है तो कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा. एंड आफ्टर दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम कंटिन्यूज. ओके. अनदर पार्ट वी सो इफ एल्स. अगर कंडीशन सही है तो वो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन गलत है तो वो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा जो कहाँ पे होंगे, एल्स पार्ट में होंगे. ओके. सो it's like if condition is true, you execute one set of statements, and if condition is false, you execute other set of statement. As simple as that. यहाँ पे दो वेरिएंट हैं उसके, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएंट नंबर 1 और वेरिएंट नंबर 2. राइट. वेरिएंट नंबर 1 में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो मैंने ब्रैकेट्स यूज नहीं किए. एज यू कैन सी यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट. एक स्टेटमेंट में भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही स्टेटमेंट में तो ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, बट फॉर ईज ऑफ यूअर्स और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, व्हेन देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इनसाइड इफ कंडीशन, वी डोंट यूज ब्रैकेट्स. if there are more than one condition more than one statements inside if block, then you must have to use the brackets. आपको ब्रैकेट्स यूज करने ही है, वो कंपलसरी है. अगर एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट यूज करें या ना करें वो कंपलसरी नहीं है, बोथ आर वैलिड ऑप्शंस. बट अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो यू कंपलसरी हैव टू यूज द ब्रैकेट्स. ओके. एंड देन वी हैव एल्स स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2. उसमें भी हम ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं. ध्यान रखेंगे कि दोनों को थोड़ा सा इंडेंटेशन के साथ अंदर लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ताकि हमें पता चले कि वो इफ एंड एल्स के इनसाइड है. ओके. एंड वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ इफ एंड एल्स. इफ यू आर ग्रेटर देन 18, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वोटर आईडी. सी, ये करेक्ट सिंटैक्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं. क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि there are only one statement, there is only one statement inside the if and else block. Right? If x into y is 0, so either x is 0 or y is 0, and अगर 0 नहीं है तो उसका मतलब है x भी नॉन जीरो है, या x and y both are non-zero numbers. If any one is 0, then result has to be 0. Okay? Moving back to our example in code blocks. Yes, from last example I have made some changes. मैंने age को क्या कर दिया है, user dependent कर दिया. user enter करेगा. If I'll run this program at 9, let's say, enter your age. So I'll enter my age as, let's say, 23 or 44. Okay, so we are inside if block and you are eligible for voting. So if के अंदर मैंने दो statements रखे हैं, that you are inside if block. थोड़ा सा नीचे ले देता है. Okay, you are inside if block and you are eligible for voting, and you are inside else block, you are not eligible for voting. दो स्टेटमेंट है if और else में, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स भी किया हुआ, as you can see. Fine. So I'll just quickly close this one और मैं एक बार माइनर एज एंटर करके देख लेता हूँ मेरा प्रोग्राम कंप्लीटली वर्किंग है कि नहीं. ओके. रनिंग. एंटर योर एज. मैं अपनी एज एंटर करता हूँ 11. ओके. 11. आई एम इनसाइड एल्स ब्लॉक एंड आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके. So this is if and else. I hope it is clear. You just have to practice this at home for various things. If and else. Okay. मैं क्या करता हूँ, सिंगल स्टेटमेंट के लिए चेक करता है. मैं ये स्टेटमेंट निकाल देता हूँ और यहाँ से क्या निकाल देता हूँ, इनके ब्रैकेट्स. ओके. लेट्स चेक if it is working without parentheses or not, because there is only single statement. If there are multiple statements, you have to use the brackets. Okay. If and else, very simple. I'll use F9 for compiling and running it. Shortcut key है. Enter your age. I'm entering age as 19. So you are eligible for voting. Yes, I'm eligible for voting. And then I'm entering age as 2. You are not eligible for voting. Okay, program is up and running. As I say, if there is only one statement, you can choose to avoid that. और अब हम एक सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं ऑड और इवन का. सबसे सिंपल प्रोग्राम. नंबर. enter your number to be checked. वेरिएबल नेम हमने चेंज कर दिया है num. Okay, so variable name is num. And how do we decide that if any number is odd or even? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बहुत सिंपल प्रोग्राम है. if else में बहुत यूज होता है ऑड इवन प्रोग्राम. सो हमारा नंबर है वो ऑड या इवन है कि नहीं, हम कैसे डिसाइड करेंगे? मॉड्यूलो ऑपरेशन से.
ओके, मॉड्यूलो ऑपरेशन इज द ऑपरेशन विच इज यूज फॉर रिमाइंडर, वो हमें रिमाइंडर देता है. सो व्हेन आई राइट NUM मॉड्यूलो 2, परसेंटेज साइन है यहाँ पे, हम उसको परसेंटेज पढ़ते हैं जनरली, पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे मॉड्यूलो कहते हैं. व्हेन आई राइट NUM मॉड्यूलो 2, उसका मतलब होता है कि जब भी कोई नंबर जो यूजर एंटर करेगा NUM में, उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, होल डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन, नो पॉइंट डिवीजन, हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे जहां पे हमें रिमाइंडर बचती है. सो जो रिमाइंडर बचेगी उसको आंसर बोलेंगे. अगर वो रिमाइंडर 0 है, अगर हम कोई भी इवन नंबर है जैसे कि 14 है, 16 है, 18 है, जो इवन नंबर्स है उनको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होलली डिवाइड हो जाएंगे और हमारी रिमाइंडर क्या बचेगी, 0. सो अगर नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचती है 0, तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे कि नंबर इज इवन, राइट, वो हमारा नंबर इवन है. अगर नहीं बचती है 0 रिमाइंडर, उसका मतलब है रिमाइंडर 1 बचेगी, तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे कि नंबर इज ऑड. Okay, number is even and number is odd. I'll just quickly run it to check. और पूछा enter your number. My number, enter number is 67. So 67 number is odd. Okay, I'll quickly run it again. And enter number is 12. Number is even. Okay, so what did we learn here? ये हमारा नया ऑपरेशन है, मॉड्यूलो ऑपरेशन. पॉजिटिव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिमिलर है मॉड्यूलो ऑपरेशन. परसेंटेज साइन इज अ मॉड्यूलो साइन. ओके, मैंने यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूलो ऑपरेशन. ओके, इसको मॉड्यूलो ऑपरेशन कहते हैं. इट इज बेसिकली टू गिव अस रिमाइंडर्स. मैं यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट में भी लिख देता हूँ. ओके, इट इज यूज्ड फॉर showing us reminders. Okay, so just quickly seeing what modulo operation is. Normal division operation कैसे perform होता है? As you can see my cursor, 26 डिवाइड बाई 5 है, तो हम क्या करते हैं, 5 5 is 25 और 1 रिमाइंडर है. आगे हम पॉइंट का आंसर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं. We put a point here, it will be 10 and 5.2 will be the answer. But मॉड्यूल ऑपरेशन में कंप्यूटर यही तक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जो रिमाइंडर है वो हमें एज एन आंसर देता है. सो इफ आई राइट डाउन 26 मॉड्यूलो 5, माय आंसर विल बी 1. जस्ट टू चेक क्विकली हियर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ जिसमें आंसर नाम का वेरिएबल है. आंसर नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर करता हूँ, आई विल जस्ट स्टोर आंसर इज इक्वल्स टू 26 मॉड्यूलो 5. ओके, आंसर क्या होना चाहिए, 1. सो मैं आंसर की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, printf answer is equals to percentage d. टीचर वैल्यू है कॉमा, उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर है, ANS में, राइट. सो आई जस्ट क्विकली रन दिस प्रोग्राम. My age is 11, let's say. I enter my number 11. 11 is an odd number. उससे पहले answer is equals to 1. As you can see, answer is equals to 1. हम बाकी सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं. Let's say ये वाला पार्ट कमेंट कर देते हैं और obviously इसके नीचे वाला पार्ट भी हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, so that we can see the only मॉड्यूल ऑपरेशन. से मॉड्यूल ऑपरेशन देखेंगे, इसीलिए हमने कमेंट किया है. ये मल्टीलाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ मैं, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा. सो सिंगल लाइन कमेंट जैसे मैंने यहाँ पे यूज की है हियर, और मल्टीलाइन कमेंट मैंने यहाँ पे यूज की है. वी हैव टू लर्न दिस हाउ टू यूज द कमेंट इफेक्टिव. ओके, सो हमारा आंसर 1 आ चुका है. आंसर मीन्स हम उसको क्या कह देते हैं अभी के लिए, रिमाइंडर. ओके, आई लर्न इट अगेन. 26 मॉड्यूलो 5. सो रिमाइंडर क्या है, 1 है. हम एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं. लेट्स से इफ आई स्विच टू जस्ट माय गूगल पेज. यस, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 हियर. ओके, 15 मॉड्यूलो 7. अगेन रिमाइंडर इज 1. या फिर हम कोई और पिकअप कर सकते हैं. क्लोज दिस. Yeah, we know the module operation, right? 135 and 5. So रिमाइंडर 0 है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा,
0 आना चाहिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 135 modulo 5. ओके, एज यू कैन सी रिमाइंडर इज 0. राइट, सो हमने ऑड इवन वाला जो फॉर्मूला यूज किया था वो उस तरीके से यूज किया था रिमाइंडर ऑपरेशन के साथ. एक और देख लेते हैं 41 modulo 5. वी नो दिस, बट मैं आपको इमेजेस में शो करना चाहता था किस तरीके से डिवीजन होता है. ऐसा नहीं है कि हमें रिमाइंडर ऑपरेशन डिवीजन ऑपरेशन नहीं आता है, डोंट बी ऑफेंडेड बाय दैट. ओके, 41 modulo 5 क्या आएगा, 1 आएगा क्योंकि 5 8 40 होता है, रिमाइंडर 1 आ रहा है. सिमिलरली मैं 43 कर दूंगा modulo 8. ओके, सो क्या आएगा, 8 4 32 40 और 3 आएगा अगेन. राइट, सो रिमाइंडर इज 3. सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड इवनली थिंग्स. राइट, मैं अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ. हमारा जो नॉर्मल प्रोग्राम है इसको वापस ले लेते हैं. Okay, our normal program is back. If I run it again, it will ask me for a number. I'll enter as an 18. 18 is an even. Reminder is still 56. Why? Because I haven't removed this. So the last value was show कर रहा है. ओके, सो ये हमारा सिंपल ऑड इवन नंबर है. मैंने यहाँ पे नंबर मॉड्यूलो 2 क्यों किया है वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. यही मेन सेंटेंस है, ये कंडीशन चेकिंग है. डबल इक्वल टू चेकिंग के लिए यूज होता है. सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर. आई कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, इसका मतलब है नंबर की वैल्यू 0 है कि नहीं वो चेक कर रहा है. और सिंगल इक्वल टू लिखता हूँ, इसका मतलब है वो नंबर को 0 वैल्यू असाइन कर रहा है. ओके, सो दैट इज नॉट अलाउड इनसाइड इफ. हम उसे चेकिंग कर सकते हैं, कंडीशन है, चेक कर सकते हैं, उसे असाइन नहीं कर सकते. सो वेन एवर यू यूज डबल इक्वल टू, ये भी ध्यान रखेंगे, डबल इक्वल टू चेकिंग के लिए यूज होता है और सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है. यहाँ पे मुझे चेकिंग करना है, क्या चेक करना है कि नंबर को मैं जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरी रिमाइंडर कितनी बचती है कोई भी नंबर को. ओके, अगर 0 बचती है इसका मतलब है इवन है. अगर रिमाइंडर 1 बचती है यानी कि 0 के अलावा कोई भी बचती है तो वो ऑड नंबर है. तो सिंपल ऑड इवन नंबर का प्रोग्राम कंप्लीट है. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस सिमिलर प्रोग्राम जैसे कि मैंने x into y वाला प्रोग्राम पीपीटी में दिखाया हुआ है. ओके, ये प्रोग्राम आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं. राइट, either is 0 or it is non-zero. Okay, inside if and else block you can put single statement or multiple statement, check it if it is working or not. Right, so आज इतना रखते हैं. if and if else, practice this very well at home. decision making and looping बहुत important है. very slowly जाएंगे, understandably जाएंगे and reach out to me for any doubts. Okay, thank you.